Good morning, student. You will be fine at your home. So we have to be continue our topic mineral and energy resource continue. We have studied about in last videos about what is the meaning of minerals, types of minerals. We have also discussion about metallic and non-metallic, and we have also discussion two types of metallic mineral, ferrous and non-ferrous mineral. So now we have discussion about energy resource. Energy resource, those resource which provide us हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी रिसोर्स. ऐसे रिसोर्स जो हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं that is called energy resource. Okay student, now we have studied about this topic in detail, so let us discuss energy resource. As you know that energy resource play an important role in our life. As you know that there are mainly two type of energy resource. Energy resource की हम लोग दो कैटेगरी बनाते हैं. First is conventional and second is non-conventional. You can say conventional resource are also called non-renewable resource. परंपरागत संसाधन कहते हैं इसको, और दूसरा है इसमें नॉन कन्वेंशियल. दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स. सो वी हैव डिस्कशन हियर अबाउट कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल रिसोर्स इन डिटेल. सो लेट अस डिस्कस अबाउट कन्वेंशियल सोर्स. Conventional source includes firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas, electricity. Non-conventional source includes solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. So we have discussion about these in detail. What is the meaning of conventional resource? You can say difference between renewable and non-renewable resource. So we have discussion about conventional. So you must have to be remember what is the meaning of conventional. Conventional means non-renewable and non-conventional means renewable resource that can be renewed or recharged in a short period of time. Those resources which cannot be renewed or recharged, that is called conventional source of energy, in which we have studied about coal, petrol, diesel, CNG in detail, and a conventional source of energy that can be renewed and recharged. According to one estimate, more than 70% energy required in rural household is met by these two. Continuous of these is increasing become difficult due to decreasing forest area. Moreover, using dung cake to being disgraced because it is consuming most वैल्यूएबल मैन्यूर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर. कहते हैं कि ज्यादातर जो हमारा रूरल एरिया होता है वहां पर 70% जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो ज्यादातर फायरवुड यानी कि लकड़ी से और कैटल डंग से हम लोग गेन करते हैं. तो ज्यादातर गांव के लोग आप जानते हैं कि फायरवुड या तो लकड़ी यूज करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, या फिर कैटल डंग यूज किया जाता है उनके द्वारा, यानी कि जो गोबर के उपले होते हैं उनका यूज करते हैं. लेकिन आज के समय में क्या कैटल डंग यानी कि कैटल डंग को हम मैन्यूर देसी खाद होता है उसके रूप में भी यूज करते हैं, गोबर खाद के रूप में इसको यूज किया जाता है. इसलिए क्या इसके प्रोडक्शन को हम लोग दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं. तो वी हैव डिस्कशन अबाउट कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. देयर आर मेनी डिफरेंट कन्वेंशियल सोर्स. कन्वेंशियल का याद रखें यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल, दोज रिसोर्स विच कैन नॉट रिन्यू, रिचार्ज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे हैव टू टेक formation million of year. These are called conventional source of energy. So first is coal. In India, coal is most abundantly available fossil food. It provides sustainable part of nation energy needs. It used for power generation to supply energy to industry as well as domestic need. India is highly dependent on coal, meeting its commercial एनर्जी रिक्वायरमेंट. यानी कि ज्यादातर हम लोग कोल ही यूज करते हैं, अपने फोशियल फ्यूल माना जाता है कोल को, और ज्यादातर जो रिक्वायर्ड करते हैं हम एनर्जी है कमर्शियल यूज में भी हम आजकल कोयले का यूज करते हैं इंडिया में. एज यू ऑलरेडी अवेयर द कोल फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल मिलियन ऑफ ईयर. जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोल होता है कोल को बनने में यानी कि हजारों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं. कोल देयरफॉर इज फाइंड वैरायटी ऑफ फॉर्म डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड डेप्थ एंड टाइप ऑफ बर्लियर. कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के कोल. तो वी हैव डिस्कशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कोल. मैं बेसिक आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर चार प्रकार के जो मेन कोल पाए जाते हैं तो उनके बारे में. सबसे पहला देखिए इसमें सबसे पहला पीट कोल क्या होता है इसमें अगर हम बात करें डिकेइंग प्लांट इन स्वैम्प प्रोड्यूस पीट. कहते हैं कि जो दलदली भूभाग होता है वहां पर पेड़ पौधों के गलने सड़ने से जो प्लांट बनता है. मोस्ट इंपोर्टेंट है विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस डिकेइंग प्लांट इन दी स्वैम्प, यानी कि पेड़ पौधों के गलने सड़ने से स्वैम्प बोलते हैं दलदली भूभाग को. जो दलदली भूभाग होता है वहां पर कौन सा कोल बनता है पीट. ये सबसे घटिया क्वालिटी का इंफीरियर क्वालिटी का कोल है, इसको हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते. विच हैज ए लो कार्बन एंड हाई मोइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी. कहते हैं कि इसके अंदर ज्यादातर मात्रा में कार्बन बहुत कम होती है, कार्बन ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगी. हाई मोइस्चर कंटेंट
और यहाँ तक कि इसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है। लो हीटिंग कैपेसिटी, कहते हैं कि इसकी हीटिंग कैपेसिटी है बिल्कुल लो है। यानी कि अगर हम सबसे घटिया किस्म के कोल की बात करें, दैट इज पीट, दैट इज द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी कोल। फर्स्ट वेराइटी इज पीट, पीट याद रखें सबसे घटिया कोल। अगर हम बात करें उससे थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी का कोल है लिग्नाइट। लिग्नाइट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल, यानी कि एक ब्राउन कोल है विच इज सॉफ्ट विद हार्ड मॉइस्चर्स कंटेंट, कहते हैं कि जो सॉफ्ट है विद हाई मॉइस्चर्स कंटेंट, लेकिन इसके अंदर भी नमी की मात्रा पाई जाती है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर नवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं कि ज्यादातर जो लिग्नाइट कोल है वो कहां पर पाया जाता है, नवेली। नवेली एक स्थान है जो तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर ज्यादातर मात्रा में लिग्नाइट कोल पाया जाता है और ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोल इज बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोल, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ कोल। ये जनरली अगर हम बात करें तो ये लिग्नाइट से अच्छा कोल माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज, दैट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर बिटुमिन्स कोल। तो बिटुमिन्स कोल को सबसे बेस्ट मानते हैं हम लोग किसके लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। एंड द बेस्ट क्वालिटी और इज एंथ्रीसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रेसाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम यहाँ पर जैसे हमने किया सबसे इंफेरियर क्वालिटी मानी जाती है पीट कोल की, जो यानी कि स्वैम्पी एरिया के अंदर प्लांट के डिकम्पोजिशन होने से बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें थोड़ा अच्छा उससे लिग्नाइट कोल, और उसके बाद बिटुमिन्स कोल जिसे सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज में हम लोग यूज लाते हैं क्योंकि बिटुमिन्स कोल सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट की मात्रा कम पाई जाती है, ओनली जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, यानी कि सबसे हार्ड कोल माना जाता है इसको, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है एंथ्रेसाइट कोल। तो वी हैव डिस्कशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल इन विच वी हैव स्टडी इन दिस वीडियो, सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इन NTSC exam 1 marks question here always attempt, so be careful and be attentive. And the next is